Good morning, students. How are you? I hope you are fine and staying at your homes for the safety concerns. As you know very well, the COVID-19 is spreading all over, so we are must be responsible for our safety. So please remain at homes and be safe. Keep your family safe. Students, today I welcome you in our computer class of HTML activity. In previous class, we have discussed list in HTML. I have described you and demonstrated you how to create ordered list and unordered list and how to use its attributes. And you may have tried them how to create, how to change their types and starting points of ordered list. The third type of list in HTML is a description list. Today we will discuss about the description list. Okay students, are you ready? If yes, please now restart. Now in our web page, I have just defined a description list. The description list where it is used, listen it carefully please. स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं HTML के अंदर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि हमने जो है पहले डिटेल में डिस्कस की हैं और उनको बनाया है। आज हमने जो है डिस्कस करना है थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट जो HTML की है वो किस तरह से बनती है, उसका नाम है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जो ये वेब पेज आपके सामने है इसमें हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट और उसके जो साथ में जो टैग्स काम करते हैं, द टैग्स विच आर वर्किंग इन कॉम्बिनेशन विद डिस्क्रिप्शन लिस्ट, वी हैव यूज्ड ऑल देम टुडे. Okay, should we start it now? Look at this web page. First of all, I have given the heading description list tag. After it, I have given description list the heading of the list. और इस लिस्ट का यूज कहां पर होता है? स्टूडेंट्स, जब आप लोग कुछ आइटम्स आपके पास होती हैं, उनकी हेडिंग आपको लिखनी है और उसके बाद उनको डिफाइन करना है, फिर नेक्स्ट आइटम आती है, उसकी हेडिंग बनती है नेक्स्ट पैराग्राफ की, फिर उसको डिफाइन करना है, फिर थर्ड ग्राफ की हेडिंग आती है, उसको डिफाइन करना है, वहां पर जो है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज होता है. इन दिस वेब पेज आई हैव टेकन 3 हेडिंग्स लाइक इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट डिवाइसेस. And I have also given a brief definition of all these 3. सबसे पहले input devices heading बना. After the heading I have defined it. Then I have given the processing unit as second heading and defined it. Then I have given output devices the third heading and defined it. But if you think we can do this thing by using different BR tags, it can be, but you cannot insert spaces or you can just organize it in a proper manner. Questions? अब जो वेब पेज आपके सामने है इसको हमने कौन कौन से टैग्स में यूज हुए हैं उनको सुनिएगा. सबसे पहले हमने HTML स्टार्ट किया, हेडिंग दी, टाइटल दिया, फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट डाली, उसकी हेडिंग का लेवल सेट किया, फिर जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमने स्टार्ट की, उसकी टर्म को लिखा, फिर उसको डिफाइन किया, फिर नेक्स्ट टर्म आई, फिर डिफाइन किया, फिर थर्ड टर्म आई, फिर उसको डिफाइन किया. उसके लिए जो है कौन कौन से टैग्स हमारे पास हैं तो वो देखिए. दिस इज द सोर्स कोड फॉर दैट वेब पेज. जो हमारा वेब पेज था उसका जो सोर्स कोड है ये वाला है. सबसे पहले हमने जो है HTML लिखा which displays you the beginning of an HTML document. After it we have defined the heading of the web page. After heading, we have defined the title of the page that is always displayed on the title bar. After closing title and head section is over now. In body section, we have started this body section and defined the background color, that is I have given pink, and I do not define its foreground color or text color. Okay. Then I have taken a heading description list. This is I have given the
level 1, that is H1. After it I have just do not have used any HBR tag. बॉडी की जब हमने स्टार्ट किया यहाँ पर हमने BR टैग यूज किया है और इसके बाद जो हेडिंग देने के बाद हमने BR नहीं लगाया और फिर भी जो है ये देखिए हेडिंग के बाद आपकी लिस्ट के अंदर गैप प्रॉपर आया है। जो आपकी लिस्ट यहाँ पर ये बनी है इसमें देखिए और हेडिंग में गैप ऑटोमेटिकली आया हुआ है, हमने उसको डिफाइन नहीं किया हुआ, देखिए कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ है। दैट इज दिस DL tag. The full definition of DL tag is the description list. D for description, L for list. After described it, we have just taken its definition, description term. किस टर्म को हमने डिफाइन करना है वो हमने लिखा यहाँ पर, देखिए DT इनपुट डिवाइसेस देन DT क्लोज। जैसा कि आप लोगों ने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में आपने LI यूज किया था, लिस्ट आइटम यूज किया था, यहां पर जो है डिस्क्रिप्शन आइटम और डिस्क्रिप्शन टर्म यू कैन से, ये हमारा आता है डिस्क्रिप्शन टर्म में कौन सी टर्म है जिसको हमने डिस्क्राइब करना है, दैट इज अ DT। उसके बाद आता है DD, इट मीन्स डिस्क्रिप्शन डाटा, किस डाटा को हमने डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, दैट इज नोन एज द डिस्क्रिप्शन डाटा। दिस इज जो भी डेफिनेशन आपकी होगी इस टर्म की वो हमारा डेफिनेशन डाटा या डिस्क्रिप्शन डाटा जो है कहा जाता है, उसके लिए जो है हम यूज करते हैं DD टैग। ऑल दीज थ्री DL, DT और DD, these are the container tags which we are to start। क्योंकि हमारा डेफिनेशन लिस्ट टैग यहां से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन टर्म को यहां पर लिखा, ये टर्म हमारी यहां पर फिनिश हो रही है, इसको हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद जो कि हमने इसको डिस्क्रिप्शन डाटा यहां पर डाला और उसके बाद जो हमारी फर्स्ट टर्म का जो डाटा था हमारा यहां पर फिनिश हो गया, उसको हमने यहां क्लोज कर दिया। फिर सेकंड जो है डिस्क्रिप्शन टर्म, हमारी सेकंड प्रोसेसिंग यूनिट जो थी हमने यहां पर स्टार्ट की है। एंड the next row after closing the DT we have started DD, means we are going to describe this definition term, that is processing unit। उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने ये DD टैग का यूज किया और इसकी डेफिनेशन यहां पर लिखी, फिर इसको हमने क्लोज कर दिया। आफ्टर क्लोजिंग द सेकेंड डिस्क्रिप्शन टर्म वी हैव स्टार्टेड द नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन टर्म, जो हमने आउटपुट डिवाइस लिखा है। उसके बाद जो कि हमने इसको यहां पर डिफाइन किया DD टैग के द्वारा। Then we have closed this description list, or after it you are also to close this DL, because you are to define, also you are to close the tags which you have started। अब हमने यहां पर क्या किया, इस DL को क्लोज कर दिया। यहां पर हमने DL को स्टार्ट किया था, यहां पर DL को क्लोज किया है। यहां पर हमने DT को स्टार्ट किया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन टर्म हमारी यहां पर कंप्लीट हो गई, हमने इसको वहां पर क्लोज कर दिया। फिर हमारा DD मीन्स उसकी डेफिनेशन स्टार्ट हुई फर्स्ट टर्म की, हमने यहां पर उसको स्टार्ट किया और यहां पर क्लोज कर दिया। सेकंड को हमने यहां से स्टार्ट किया और यहां ला करके जो है उसकी जो डिस्क्रिप्शन की जो लिस्ट की जो हमारी डेफिनेशन थी यहां पर फिनिश, उसको यहां पर हमने फिनिश किया हुआ है। थर्ड टर्म स्टार्ट हुई हमारी यहां से, उसका आइटम यहां पर क्लोज किया, जो उसकी डिस्क्रिप्शन थी यहां DD में डाला, उसको यहां पर क्लोज कर दिया और उसके बाद जो DL को क्लोज किया। फिर फॉन्ट को जो कि हमने फिर यहाँ पर जो है हमने बॉडी को क्लोज कर दिया और फिर ये HTML को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हमने कंप्लीट हुआ, सेव किया। इसको सेव करने के बाद जब हम यहाँ पर आते हैं और इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, वट एवर द चेंजेस वी हैव मेड इनटू द डॉक्यूमेंट इट विल बी डिस्प्लेड हियर। अब यहाँ पर जो है हमारा ये डिफाइन हुआ है, वेब पेज बन गया। एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे बनती है, नाउ स्टूडेंट्स यू कैन चेक वट एवर यू वांट टू बी आस्क्ड, जस्ट ओनली HTML। यहाँ पर हेड पोर्शन हमने डिफाइन किया, इसके अंदर हेडिंग और टाइटल आता है। फिर हमने बॉडी टैग का उसके एट्रीब्यूट चेंज किया, बैकग्राउंड कलर ओनली। फिर हमने H1 टैग हेडिंग लेवल का लेवल सेट किया है। उसके बाद ये आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट है हमारी, वहां से लेकर के और ये यहाँ तक, ये स्टार्टिंग हो गई, ये क्लोजिंग हो गई। ये DT की स्टार्टिंग, ये DT की क्लोजिंग, ये DT की स्टार्टिंग, ये फर्स्ट टर्म हमने क्लोज कर दिया। फिर सेकेंड टर्म हमारी स्टार्ट हो गई यहाँ से यहाँ तक, इसको डिफाइन किया यहाँ तक। फिर ये थर्ड वाली स्टार्ट हुई और उसके बाद इसको डिफाइन किया।
के इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया, फिर बॉडी टैग HTML क्लोज। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है आपका जो ये आउटपुट है ये आपके सामने होगा, मीन्स यू कैन क्रिएट दिस डिस्क्रिप्शन लिस्ट। मतलब आपने क्या करना है, जो आपको एक एक्टिविटी दी जा रही है उसमें आपने एक वेब पेज के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट तीनों बना करके एक वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करनी है। डिस्प्ले करने के बाद जो है उसकी एक स्नैप क्लिक करनी है और मुझे सेंड करनी है। दैट इज योर एक्टिविटी वर्क to complete the list portion. Now you have all three. In next class we will discuss about the nesting of lists. Means लिस्टों को nesting हम कैसे कर सकते हैं, we will discuss this. Okay students, that's enough for today. Thank you and have a nice day.